no copper straight through is the option. You already know. I will not talk about it. Okay? I will assign some IP to each of the devices. PC में एक IP देना है, so I will give to this PC the IP is 10 dot something, 10 dot 10.2 to the PC 0. PC 1 को दूंगा 10.10.3. सर्वर को भी एक IP देना है. सर्वर also end device, a host like PC 10.10.10.10. Okay? And router का ये जो इंटरफेस है gig 0x0x0 which is connected with the switch and the PCs, that is the gateway or default gateway of this PC on this server. One thing to note here, ये सर्वर और पीसी को मैं सेम नेटवर्क के अंदर ही रखा हूं. All are within the same network. Now I am providing a IP to this interface of the router which is connected to the switch. Let me give 10.10.10.1. ये IP में just उसको नोट डाउन किया हो. Now I will assign the IP one by one. So let me go to the PC 0 and assigning this 10.10.10.2. So I am going to the PC 0, desktop, IP configuration. I will assign this IP 10.10.2. Subnet marks is class A. So class A IP will take 255. Then all zeros. Default gateway is the PC जिस router के साथ connected है. 10.10.10.1. I think you know all this. Yes. So 10.10.10.1 will be the default gateway of PC 0. Okay? So PC 0 IP assigned. Now PC 1. Desktop again same 10.10.2 दिया था. पिछले PC को इसमें दूंगा 10.10.3. You cannot assign same IP to the duplicate device. Okay? Default gateway same. Both the PC are connected with the router. 1. Gig 0x0 interface. ये interface इसमें 10.10.10.1 असाइन होगा, तो उसका डिफॉल्ट gateway सेम है. ओके. पीसी में आईपी असाइन होगा. एनी कंफ्यूजन ऑन दिस? ये आई हैव टॉक्ड. मतलब 1000 ऑफ टाइम दिस इज शो. एवरी एक्सपेरिमेंट कंट्रोल टू द सर्वर. सर्वर में मैं आईपी काट दो उधर पर तो 10.10.10.10. ये सर्वर में आईपी दे रहा हूं. सेम वे पीसी में जैसा आईपी देता है सर्वर में भी सेम. डेस्कटॉप में जाओ, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, दे दो. सबनेट बॉक्स बाय डिफॉल्ट इट विल टेक, and the default gateway for the server is also 10.10.10.1. Okay? Done. So IP assignment PC or server में done. Now router में भी assign करना पड़ेगा IP. Let me go to the router. I will use CLI. You can do manually, but I will not suggest to do that. So I am going to the router CLI. No. Would you like to enter the initial configuration dialog? No. Press return, मतलब enter. I am now router user mode. So I need to assign the IP to the router this interface, which is 10.0.10.10.1, which I already noted down that I will assign. For that, okay. So I am router user mode. To assign any IP, you have to go to the config mode. The first step is to go to the privilege mode. Then you should
go to the config terminal or config tree that will forward to you config. Done. Now I am selecting the interface where I am to assign the IP. The interface is lit 0 by 0 by 0. Router का interface selected. Interface, then that interface ID git 0 by 0 by. Done. Now I am giving assigning IP address, उसके लिए command है IP address. Then the IP I thought to assign, that is 10.10.10.1 and उसका subnet marks. प्रत्युष का उसके लिए 8 marks, rest 24 is host ID part, उसके लिए 24 zeros, which will lead you to this subnet marks. I have actually this कितने बार रिपीट किया ये चीज assigned. Now this interface is red, मतलब ये shutdown है interface. Interface के लिए भी एक बटन होता है. No shutdown. एक बटन मिला तो उसको हमको स्विच ऑन करना है. उसके लिए कमांड है no shutdown. The interface is now shutdown state. I have to make it to the switch on state. For that command is no shutdown. Done. Interface is now become green. You can okay. Let it be. ये basic configuration था. Yes, configuration I think everybody can do. Now let me check. Let me test my connections. For that I am taking a simple video simple data unit and sending from PC0 to router. Yeah, successful showing in the corner. Let me check again PC to server. Yeah, it's also going successful showing in the corner. Okay? Let me delete all the scenario. Now I am going to implement the AAA server. Okay, let me go to the server. First, server में services. AAA is a kind of service which is provided by a server. Services में जाओ, यहाँ पे देखो बहुत सारे services ऑप्शन है. उसका एक है AAA service. Again सर्वर का सर्विसेज में जाकर AAA सर्विसेज को सिलेक्ट करना है. वो बाद में करेंगे. देखो यहाँ पे एक चीज, अभी मैं सर्वर में कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करूँगा. जस्ट ये दिखाने के लिए मैं ऑलरेडी थ्योरेटिकल बोल दिया हूँ. AAA सर्वर are two type or two mode. One is radius, one is TACACS. Okay. So what I am selecting? I am selecting TACACS. I have told the difference already in theory, in class. What TACACS? TACACS is a AAA server. Radius also is AAA server. उसका full form तुम देख लेना. बहुत बड़ा full form. हाँ. TACACS में यूजरनेम जो होता है ना, TACACS में जो सर्वर और राउटर के बीच जो भी कम्युनिकेशन होगा, दोनों के बीच, सर्वर और राउटर के बीच सारे चीज एन्क्रिप्टेड रहता है. एन्क्रिप्टेड मतलब जो तुम टेक्स्ट भेजते हो या कमांड भेजते हो उसको कुछ दूसरा कोड में ट्रांसफर करते हो. सर्विस को ऑन बाद में कर देते. ठीक है. To use the AAA server, this is my AAA server, going to be my AAA server. I need to make some configuration in the router. Router में कुछ configuration करना है. नहीं, कुछ नहीं हुआ है. So router में config mode में आना है.
बार मैं क्यों यूज कर रहा हूं? ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए। राउटर में अगर कोई एक्सेस करने आएगा आइदर रिमोटली और लोकली व्हाटएवर, पासवर्ड मांगेगा, यूजर नेम पासवर्ड, जो टैगैक्स वेरीफाई करके, मतलब ये सर्वर टैगैक्स सर्वर या ट्रिपल सर्वर वेरीफाई करके राउटर को बोलेगा कि द यूजर इज ऑथेंटिकेटेड। सो उसके लिए राउटर में कुछ ट्रिपल कॉन्फ़िगरेशन करना है। राउटर में ट्रिपल कॉन्फ़िगरेशन अगर करना है तो फर्स्ट कमांड इज ट्रिपल ए। देन क्वेश्चन मार्क दो, देखोगे कुछ आया है ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन, ट्रिपल ए ऑथराइजेशन, ट्रिपल ए न्यू मॉडल। हम लोग enable new model, enable new access control or new model. So we have to, this is the first configuration of the AAA, so you have to start with a new model. First command over AAA new model. AAA then new model. अगर तुमको कोई कमांड नहीं पता है, अगर थोड़ा बहुत पता है तो थोड़ा बहुत लिखो, लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क दो, उसमें ऑप्शन आ जाएगा क्या देना चाहिए। So you will choose on that. So AAA new model is the first command when you are configuring AAA into the router. So first command is AAA model, new model you are going to form. Okay? Now new model has now created. Now ये ऑथेंटिकेशन एक लिस्ट बनाना पड़ेगा तुमको, जो लिस्ट सर्वर के पास जाए ट्रिपल ए, उसके बाद क्वेश्चन मार्क देते हैं ऑथेंटिकेशन, ये वाला we have to select now triple A authentication, triple A authentication। उसके बाद फिर से क्वेश्चन मार्क दो, okay just I forget one thing, router में हो रहा है, so I am just hiding all the, is it visible? ये न्यू मॉडल की चलाना सबके पास विजिबल है ना? अभी हम एक लॉगिन लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, लॉगिन लिस्ट, ठीक है। देन यू हैव टू गिव द लिस्ट, जो क्रिएट हो रहा है उसका नाम देना पड़ेगा, लिस्ट का नाम। सो देयर आर टू ऑप्शन टू गिव द लिस्ट नेम। आई जस्ट प्रेस क्वेश्चन मार्क, होता है HDR मैनेज, सो आई एम यूजिंग द डिफॉल्ट मैनेज कर चला डिफॉल्ट ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन लॉगिन डिफॉल्ट। ओके, इसके बाद देना पड़ेगा ग्रुप, मतलब दिस लिस्ट विल बी अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो उसके लिए ग्रुप बनाना पड़ेगा, ग्रुप। ओके, देन is it going to tag us or radius? That you have to mention in the router. So tag us दिए थे तो यहाँ पे भी tag plus का जो ऑप्शन है वो देना पड़ेगा। So it will be by the tag whatever. Say just name. Okay. Triple authentication login different group tags. तो एक ऑथेंटिकेशन लिस्ट क्रिएट होगा, इसके बाद लेट्स से इसके बाद भी HDR ना है, लेट मी टेल यू, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग, ये एक लॉगिन ऑथेंटिकेशन लिस्ट क्रिएट करेगा, एक लिस्ट क्रिएट करेगा, डिफॉल्ट लिस्ट का नाम है डिफॉल्ट। उसका जो वेरिफिकेशन होगा या ऑथेंटिकेशन के लिए जो ऑथराइजेशन चाहिए वो टैग सर्विस को टैग सर्वर। अगर in that case tag failed, let's say I want to access authentication list create हुआ login list, इसका वेरिफिकेशन होगा tag से, if tag failed होगा, this is the full code. Okay,
This is the major command for the AAA configuration. Done. Now, अभी AAA ऑथेंटिकेट ये एक लिस्ट क्रिएट हो गया है टैगस से जो लिस्ट वेरीफाई होगा if tags spread local variable. Okay, using the local username and password in the router. Now you have to mention who is the tags server, उसका IP देना है. तो राउटर को बोलना पड़ेगा ये जो तीनों जो पीसी ये सर्वर है उसके बीच और भी सर्वर हो सकता था, उसके बीच कौन टैग्स प्रोवाइड कर रहा है उसका आईपी देना है. तो उसके लिए कमांड है टैग्स सर्वर टैग्स टैग्स सर्वर होस्ट, मतलब कौन टैग्स सर्वर को होस्ट कर रहा है उसका आईपी. क्या आईपी होगा जो टैग्स को होस्ट कर रहा है कौन सर्वर का आईपी. सो सर्वर का आईपी मैंने दिया था 10.10.10.10. ठीक है, डन डन. और एक चीज होगा दोनों के बीच जब एन्क्रिप्टेड होता है, ये चीज मैं थियोरेटिकली बोलूंगा लास्ट में, दोनों के बीच एक की शेयर होगा. की मतलब लॉक की जिस की को यूज टैग्स सर्वर. ठीक है, then key, the command is key and the key, what key you want to create, server 1 2 3, जो की दोनों के बीच शेयर होगा. So first you have to tell the who is the host or TAGAX server उसका IP, फिर उस दोनों के बीच राउटर और TAGAX सर्वर के बीच एक की शेयर होगा. उस की को क्रिएट करना है राउटर. तो मैं की को क्रिएट किया एक पासवर्ड, जैसे से पासवर्ड, the password is server 1 2 3. It's a key basically. Done? Okay. Now main things. So राउटर में एक्सेस दो टाइप का होता है मैंने बोला हूँ. एक है अभी इस रिमोट एक्सेस में you have to mention this authentication to this remote access should be by the TAGAX or by the local server. So it is by the TAGAX one. So what you have to do, login authentication, वो जो डिफॉल्ट लिस्ट किया है वो टैग्स डिफॉल्ट लॉगिन ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट. तुमने जब टेलनेट एसएसएच किया था तुम्हारा याद है तुमने लिखा था लॉगिन लोकल, जस्ट उसकी जगह तुम लिख रहे हो लॉगिन ऑथेंटिकेशन. जो टैग्स में जो लिस्ट किया हुआ है डिफॉल्ट लिस्ट वो लॉगिन ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट. और एक एक्सेस होता है लोकल एक्सेस जो कंसोल थ्रू होता है लॉगिन कंसोल 0, उसमें लोकल एक्सेस होता है. उसमें भी जो एक्सेस होगा वो टैग्स लॉगिन कंसोल इट्स नॉट लॉगिन कंसोल थ्रू जो एक्सेस होता है वो भी होता है लोकल एक्सेस. उसके लिए होगा कमांड, उसके लिए जो ऑथेंटिकेशन होगा वो भी डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन टैग्स ऑथेंटिकेशन देन डिफॉल्ट हो गया. ठीक है, राउटर में जो काम करना था हो गया. अभी इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं सेव करता हूँ. सेव कभी-कभी सेव करना पड़ता है. इफ इट नॉट सेव सो आल्सो ओके, बट लेट इट सेव. एग्जिट करता हूँ, कंट्रोल मोड में आया, एग्जिट करता हूँ. अभी मैं प्रिविलेज मोड में आया. प्रिविलेज मोड में सेव होता है. सेव का कमांड है राइट, WRIT. जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया है उसको राइट करें. राइट हो गया. बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन इधर है.
बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन ओके, कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड हो गया। अभी लेट्स चेक द कॉन्फ़िगरेशन इज सक्सेसफुल और नॉट। शो रन बोलकर एक कमेंट है, शो रन इसमें जो जो कॉन्फ़िगरेशन में किया हूं वो दिखाएगा। देखो ट्रिपल ए न्यू मॉडल मैंने बनाया, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन लॉगिन डिफॉल्ट लिस्ट बनाया, टैगक्स ट्रू होगा, अगर टैगक्स फेल है तो लोकल, देन और क्या का कॉन्फ़िगरेशन किया हूं, ये स्पैनिंग की यूजर सब करता है, स्पैनिंग की तो ऑटोमेटिक है। टैगक्स सर्वर का जो आईपी वो दिया हूं, टैगक्स सर्वर की जनरेट किया हूं, सर्वर 1 2 3 कंसोल 0 लाइन कंसोल 0 में भी टैगक्स से लॉगिन ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट टैगक्स तर मोर लाइन मेरा बीएसएन जो मोर कर दे इसमें भी टैगक्स सेट किया। डन। राउटर में कॉन्फ़िगरेशन ओके। ऑन एक ही डिवाइस कनेक्ट हो सकता है। तो राउटर इज द क्लाइंट एंड सर्वर इज द सर्वर। डिवाइस भी तो चाहिए गोटे क्लाइंट राउटर भेजेगा, कोई यूजर जब एक्सेस करना चाहेगा उसका ऑथेंटिकेशन सर्वर को फॉरवर्ड करेगा। सर्वर में डेटाबेस क्रिएट करना है यूजर नेम एंड पासवर्ड का, उस डेटाबेस के साथ अगर यूजर नेम पासवर्ड मैच हुआ इट विल सेंड द ऑथेंटिकेशन टू द राउटर। तो लेट मी गो टू द सर्वर नाउ। सर्वर में ट्रिपल ए सर्विसेज में फिर से जा रहा हूं, अभी सर्विसेज को ऑन कर दिया। सर्वर टाइप मैंने टैगक्स सिलेक्ट कर रहा हूं। क्लाइंट कौन है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है राउटर। होस्ट नेम क्या है, लेट मी चेक द होस्ट नेम। होस्ट नेम इज राउटर। सो सर्वर में जाता हूं, क्लाइंट नेम मतलब होस्ट नेम कौन है, राउटर। राउटर का आईपी मतलब वो जो इंटरफेस में आईपी दिया हो, जो इस सर्वर के साथ किसी के साथ कनेक्टेड है, जो इंटरफेस उसका आईपी, वो आईपी तुमको देना होगा। क्लाइंट आईपी क्या है, वन राउटर का आईपी। नाउ सीक्रेट की मतलब वो जो की क्रिएट किया था ना, वो यहाँ पे भी देना। डन। राउटर का आईपी, दैट सीक्रेट की क्रिएटेड आई विद द राउटर, वो वाला सर्वर को दिया, ऐड कर हो गया। अभी यूजर नेम पासवर्ड जो मतलब जो पीसी राउटर को एक्सेस करेगा उसका यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे यू कैन क्रिएट। सो आई एम क्रिएटिंग ए यूजर नेम, लेट्स से CNS1 यूजर नेम, पासवर्ड लेट इट बी CNS1, both same, ओके। एंड फिर से और एक यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूं, CNS2, पासवर्ड इज आल्सो CNS2, ठीक है। CNS3 पासवर्ड आल्सो CNS। तो मैंने 3 यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट किया सर्वर में, देखो CNS1 CNS1 यूजर नेम पासवर्ड, CNS2 CNS2 CNS3 CNS3, डन। in case टैगक्स failed, टैगक्स जब 1 रहेगा, टैगक्स जब मतलब आप स्टेट में रहेगा सर्वर, तब ये यूजर नेम पासवर्ड से काम चल जाएगा। ये जो यूजर नेम पासवर्ड मैंने किया, इन केस टैगक्स डाउन और फेल्ड, एट दैट टाइम लोकल ऑथेंटिकेशन विल बी यूज्ड। तो लोकल यूजर नेम पासवर्ड मैं क्रिएट करता हूं, go I am going to the router again, I am creating a local login username password,
So let me go to the config mode again of the router. Config mode of the router, and I am creating a local username password. तो उसके लिए कमांड है यूजरनेम में क्रिएट कर रहा हूँ सौरभ, पासवर्ड में दे रहा हूँ विश्वास। ठीक है, ये लोकल लॉगिन पासवर्ड जो राउटर में किया कर रहा हूँ, ये राउटर का डेटाबेस में सेव है। Done. Every configuration is done. Now चेक करना है is that authentication हो रहा है कि नहीं। तो फिर से सर्वर में क्या क्या यूजर नेम पासवर्ड दिया था CNS1 CNS1 CNS2 CNS2 CNS3 CNS3 और लोकल यूजर नेम पासवर्ड क्या दिया था। ओके, नाउ लेट मी गो टू द PC। अभी हम रिमोटली एक्सेस करेंगे राउटर को यूजिंग द वर्चुअल टर्मिनल जो रिमोट एक्सेस होता है। कमांड प्रॉम्प्ट ऑफ द पीसी, यू नो दिस कमांड, लेट मी यूज टेलनेट। टेलनेट से रिमोट एक्सेस होता है। टेलनेट देन राउटर का वो जो इंटरफेस का है, राउटर को एक्सेस करना है तो राउटर का है। पीसी में हूं, पीसी 0, so I am typing the value 10.10.1 enter. Try 10.10.1 open user access verification। यूजरनेम में दे रहा हूँ CNS1, वो वाला CNS1। ठीक है, पासवर्ड क्या था टाइप किया, राउटर में आ गया। ये वेरिफिकेशन हुआ ट्रिपल सर्वर, राउटर में आ गया, राउटर का यूजर मोड में आ गया।